then we will get into the solution part of what I'm kind of proposing today. So सबसे first and foremost question, I think everybody in this team has either built APIs or consumed APIs, right? ये तो I think सब लोग कर चुके हैं, ठीक है? Backend developers specifically are building APIs, right? And the front end guys, चाहे वो mobile front end हो या web front end हो, they are consuming APIs, ठीक है? तो anybody in the team right now, especially who have been through this pain point of either building or consuming APIs, can you tell me what has been your biggest pain अभी तक? चाहे बनाते टाइम या कंज्यूम करते टाइम, anybody can speak. अगर कोई पेन ही नहीं है तो फिर टेक टॉक खत्म बात खत्म. टाइमलाइंस, एपीआई की टाइमलाइंस इज द पेन. API की टाइमलाइन इज द पेन. ओके, सो ये अच्छा पॉइंट है. डेवलपमेंट एंगल से, टेक एंगल से क्या इश्यूज आते हैं? कैन एनीबडी टेल मी कि व्हेन यू आर बिल्डिंग एन API फॉर अ फेलो डेवलपर टू कंज्यूम, or if you are the consumer and if you are looking for an API from the other person, what are the typical kind of sync up issues that you face with that other team member? I think the sync up issues is there. Agar if two or maybe people are working into the building the APIs, तो अगर किसी ने अपनी API ऐड कर दी है तो सामने वाले के सिंक नहीं होता है, तो that is the I think biggest pain. इसके अलावा भी there may be something, but so basically environment एक तो अलग से लाना पड़ता है. Environment, right, वो सेटअप करने का इशू है, प्लस the responses like उसके टाइप्स कितने सैंपल रिस्पॉन्सेज जो हम सेव कर सकते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं. वो प्लस ऑब्वियसली सिंक अप इश्यूज हैं कि अगर वो रिस्पॉन्सेज पीछे से डेवलपर ने ऐड कर दिए हैं, सो आगे वो पोस्टमैन अगेन हमें फेच करनी पड़ती है, रिफ्रेश करनी पड़ती है. राइट. तो बेसिकली सॉरी गो अहेड. सो गौरव, जो बेसिकली जब मैं डेवलपमेंट करता था तब जो सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट इशू जो आता था उस टाइम ही आता था स्ट्रक्चर ऑफ जेसन. राइट. So that जो सैंपल जो हम अपनी जो शेयर करते हैं, सैंपल जेसन जो हम शेयर करते हैं, so that will be the biggest pain कि वो from the front end part and the back end part that will not be clear because front end back end ने कुछ बनाया होता है and front end was consuming something else. So उसके अंदर जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है या फिर मतलब दे रहे होते हैं किसी को from cross functional team से, when two cross functional are working on it, तो उसके अंदर सबसे to and fro होता है. Right. Basically, so that is absolutely correct. When I have been a part of either, let's say, discussion with the mobile team in terms of कि मुझे API कोई backend developer provide कर रहा है, या मैं खुद backend developer होता हूँ और मुझे mobile team को कोई API देनी होती है, the biggest problem and the biggest confusion I think happens with the structure of the JSON and also with the fields that this JSON is supposed to contain. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये बना लो, इसको यूज कर लो, and then the front end developer will come to us, यार I need to show this data in my UI or I need to use this data in some kind of calculation logic, but it is not coming in your JSON form. तो उसको फिर मैं जाके चेंज करूंगा, फिर वो डेवलपर कहेगा नहीं यार तुमने नेस्टेड कर दिया इसको, you put it under in an object, I need it on the root level या फिर vice versa, right? तो this type of confusions आमतौर पे मोबाइल टीम तो क्या डेली एक्सपीरियंस करती होगी, I'm sure, but anybody who's a front end to an API provider will sooner or later experience such problems. ठीक है? Anybody who has not faced this problem till date, उसको मेरी तरफ से फाउंडर रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपके APIs 100% परफेक्ट हैं और सामने वाला भी बिल्कुल खुशी लेने को तैयार है. तो अगर ऐसा हो रहा है तब तो इस टॉक इज कंप्लीटली रिलेवेंट फॉर यू और आप लोग इस कॉल को ड्रॉप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको कभी ये प्रॉब्लम आई नहीं, बट ये जरूर है कि ये प्रॉब्लम आएगी और आती रहती है, and that is a problem that we have to solve for. What we have learned, I have learned over a period of past few days, is that technologies exist which can help us solve this problem in a very easy and very straightforward manner, so that हम लोग अपनी दोनों teams को decouple कर सकते हैं. So the idea that I'm going to propose today is to break down our development process in such a way कि backend और frontend team completely isolation में अपना काम कर पाए while still being productive at the same time. ठीक है? तो पोस्टमैन करके जो हम टूल यूज करते हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर टूल, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड हैव यूज्ड इट और एटलीस्ट हर्ड अबाउट इट. तो उसमें देयर आर टू फीचर्स ऑफ पोस्टमैन दैट वी आर गोइंग टू बेसिकली लर्न टुडे. ठीक है? द फर्स्ट फीचर ऑफ पोस्टमैन इज कॉल्ड पोस्टमैन मॉक्स एंड द सेकंड फीचर ऑफ पोस्टमैन इज द सिंपल डॉक्यूमेंटेशन फीचर. ठीक है? दोनों ही फीचर्स मेरे ख्याल से हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी कम यूटिलाइज करते हैं, जबकि दोनों फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यू विल once you learn it today on the tech talk, you will realize how straightforward it is, and probably you will just fall in love with the simplicity and start using it from today on.
itself. You know, that is how easy Postman has actually made this. ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड आई विल रिकमेंड कि सब लोग एक बार इसको ढंग से देखना एंड इफ पॉसिबल किसी भी अपनी पुरानी एपीआई के साथ, या तो आपको एज ए कंज्यूमर कभी वो एपीआई मिली हो या एज ए प्रोड्यूसर आपने कभी वो एपीआई प्रोड्यूस करी हो, उसके साथ या तो साथ साथ करते रहो, मेरे साथ साथ अपने अपने स्क्रीन पे करते रहो, या फिर इसको एक बार पूरा देख लो और इसके जस्ट बाद खुद बना के देखना और यू विल बी एबल टू रियलाइज हाउ सिंपल थिंग्स आर. ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ इज आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. Sir, can we just record this one session so that for the future reference, if it will be helpful? हाँ, I think Ayushi is recording the. Ayushi, are you recording the session, right? Ayushi, are you recording the session? Yes, sir. Recording is on. Recording is on, right? ठीक है, बढ़िया. So let me just show my screen. Hold on, and guys, let me know once you're able to see it. कोई भी बंदा confirm कर देना, please. Chat is not visible. Visible, ठीक है, perfect. तो मैं कैसा करूंगा कि अपने for the sake of this demo, I will just keep it like really simple and I will try to do it with the most common API which you have already seen and used many times, which is your jobs API, जो आपने कई लोगों ने अपने इंटरव्यू के टाइम पे भी आपने या तो कंज्यूम करी होगी या बनाई होगी. ठीक है, तो उसी को हम लोग ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये पोस्टमैन का वेब वाला वर्जन है. हम लोग, मैंने कोई क्लाइंट डाउनलोड नहीं करा पोस्टमैन का अपने लैपटॉप पे. दिस इज द वेब व्यू. ठीक है, सो यू जस्ट गो टू postman.com and just log in using your Postman credentials and you know this is what you will ultimately end up seeing. ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक कलेक्शन का फीचर होता है. तो उधर मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा import and I'll just go to the link वाला part and I will just import my collection. और ये वही कलेक्शन है जो हमारी नॉर्मली हम लोग यूज देते हैं जो किसी फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर की हायरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है. तो आई जस्ट क्लिक ऑन import और आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमारी कलेक्शंस में एक जॉब सर्वर का हमारा API इंपोर्ट हो गया. ठीक है, आई एम श्योर इतना तो सब लोगों ने हर बार किया होगा, रिपीटेडली किया होगा. नो बिग डील हियर. ठीक है, और इधर हमारी जब यहाँ पे ये सारी APIs हमारी इंपोर्ट हो गई. ठीक है, now the interesting part starts. Now what I will be doing is we are going to create something called a mock API. ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, समझते हैं कि mock होता क्या है. ठीक है, a mock is an API which works like an API but पीछे कोई कोड नहीं है, बिना कोड का API है ये. ठीक है, so that you can give an endpoint to your fellow developer without actually writing even single line of code. ठीक है, मुझे अपनी लॉगिन API का पूरा प्रोटोकॉल सामने वाले बंदे को देना है. सो ये लेट्स से यू आर बैकएंड डेवलपर, मेरे को अभी लॉगिन API बनाने में 2 दिन लगेंगे. ठीक है, बट मेरा ऐप डेवलपर लॉगिन के स्क्रीन को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है. तो मैं अपने फ्रंट एंड डेवलपर को, अपने ऐप डेवलपर को बोलूंगा कि तू ये मॉक यूज कर, और उस मॉक में मैं एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्स रिटर्न करूंगा जो मेरी एक्चुअल API फ्यूचर में करेगी. ठीक है, so by that logic what will happen is that the app developer has absolutely no dependency on the backend developer and he can continue building his app. In the meanwhile you can continue building your actual APIs. ठीक है, that is the concept of mocking. I hope everybody is clear on it. अगर किसी को डाउट है तो भी बता दो so that I can explain it again. But the main idea is that you are building a response to an API even without writing a single line of code, and the front-end developer will, for all practical purposes, use it like a real API, even though the actual endpoint does not even exist. ठीक है, that is the beauty of mocking the API. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जाएंगे. अब हम यहाँ पे जो हमने API इंपोर्ट करी है उसमें जाके हम लोग अभी अपनी तरफ से कोई भी, जैसे अपना कोई लॉगिन की API की हम बात करते हैं. ठीक है, तो आई गो हियर एंड आई विल बेसिकली राइट क्लिक एंड सी सम ऑप्शंस हियर. सबसे पहले हम करेंगे इस जॉब सर्वर का यहाँ पे बनाएंगे मॉक. ठीक है, तो आपको देखना होगा यहाँ पे मॉक कलेक्शन का ऑप्शन आता है. तो इस मॉक कलेक्शन में क्लिक करता हूँ. ठीक है, इट आस्क्स मी कि मॉक सर्वर का नाम बताओ. तो आई जस्ट से गौरव सोयाबोट मॉक सर, कुछ भी नाम दे दिया मैंने. ठीक है, ये सब हमने अपनी तरफ से कुछ एनवायरनमेंट सेट कर दिए और यहाँ पे अपनी तरफ से इसको टिक रखना. आई विल एक्सप्लेन लेटर व्हाई. एंड एक हम क्रिएट मॉक सर्वर यहाँ पे क्लिक करते हैं. ठीक है, तो मेरा मॉक सर्वर क्रिएट हुआ. तो मेरे मॉक सर्वर के लिए उसने मुझे एक बेस यूआरएल दे दिया. ठीक है, तो अब मेरी जो मॉक APIs हैं वो इस यूआरएल पे चलेंगी, बेस यूआरएल पे चलेंगी, ना कि मेरा एक्चुअल API यूआरएल. ठीक है, तो instead of saying api.huddle.com या कुछ ऐसा, I will actually use this URL as my base URL. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लेट्स से अपने पास अभी फिलहाल कॉपी करके रख लेंगे बस अपने क्लिपबोर्ड पे, नथिंग एल्स. ठीक है, नाउ अब हमें लॉगिन का API चलाना है. ठीक है, नाउ वी नीड अ मॉक फॉर अ लॉगिन API. What I will be doing is I'll click on this triple dot and I will just say add example. ठीक है, अब मैं इस add example पे क्लिक करूंगा. ठीक है, एंड इस एग्जांपल में जाके मैं वो API का डेफिनेशन दूंगा
जो मुझे इस लॉगिन के रिस्पॉन्स में देनी है फाइनली डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अभी मैं कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मैं ऐसे डालता हूँ यहाँ पे कुछ भी सक्सेस, ठीक है, ट्रू, कुछ भी ऐसे डाल देते हैं, ताकि मतलब हमको पता रहे कि भाई ये हमारा पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है जो हमें देना है इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। और ये करने के बाद आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव, ठीक है। अब ये वाला मेरा जो लॉगिन का एक एग्जांपल रिस्पॉन्स यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है जी, वी आर क्लियर ऑन दैट। नाउ बेसिकली व्हेन आई नीड टू रन दिस एपीआई, अभी मेरे पास एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था, अब मैं क्या करूंगा, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाऊंगा तो ये वाला बेस यूआरएल मेरा यूज हो रहा है। नाउ आई कैन जस्ट गो एंड सी कि मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मेरा बेस यूआरएल सेट हुआ है जो मेरा jobs.api.squareboot.info जो एक्चुअल है, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट शिफ्ट टू द मॉक सर्वर एंड आई विल इंस्पेक्ट दिस मॉक सर्वर, और मैं जाके देखूंगा कि इधर मुझे अपना बस एक क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊंगा, आई विल जस्ट गो एंड एडिट करो, क्या हो गया, इसको एडिट नहीं हो रहा है, The values directly, sir, you are already in the edit mode. आई एम ऑलरेडी इन द एडिट मोड। ओह सॉरी, यहाँ पे आ गया क्या, ओह सॉरी, लुकिंग फॉर अ पॉपअप। तो बेस अंडरस्कोर यूआरएल और यहाँ पे गया और मैं बस बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको जाके सेव कर दिया, पेस्ट कर दिया एंड आई हिट ऑन सेव, ठीक है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस लॉगिन एपीआई, ठीक है, एंड आई क्लिक एंड माय एनवायरनमेंट इज सेट टू मॉक सर्वर एंड आई क्लिक ऑन सेंड, ठीक है। तो आप देखोगे कि मैंने जो अपना एग्जांपल सेट किया था, ठीक है, मेरा वो एग्जांपल का रिस्पांस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर ऑन द फैक्ट कि मैंने क्या करा है कि एक मॉक सर्वर का यूआरएल अब मेरा बेस यूआरएल की तरह काम कर रहा है। अब मैं कहीं से भी एपीआई को हिट करूंगा, चाहे पोस्टमैन हो चाहे कोई और हो, इट विल सेंड मी द रिस्पांस व्हिच आई हैव सेव्ड इन द एग्जांपल फाइल, ठीक है। तो व्हाट आई हैव बेसिकली डन इज आई क्रिएटेड एन एग्जांपल एंड आई हैव एसोसिएटेड दैट एग्जांपल टू अ बेस यूआरएल व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन, राइट। तो मैं एज अ बैकएंड डेवलपर अपनी सारी एपीआई जो मुझे बनानी है, लॉगिन, साइन अप, टोकन, डैशबोर्ड, एडिट प्रोफाइल, फलाना ढिमकाना, कुछ भी मेरे को बनाना है, उन सब के एग्जांपल्स बना दूंगा, ठीक है। और अपने फ्रंट एंड डेवलपर को बोलूंगा कि अपने एनवायरनमेंट में जाके वो मॉक यूआरएल डाल दो एज द बेस यूआरएल, ठीक है। और तुम उस एपीआई को हिट करो, और उस एपीआई को हिट करोगे तो तुमको एक्चुअल रिस्पांस तुमको एक अच्छा रिस्पांस आएगा जो मैं बाद में सीमलेसली कर दूंगा अपने एक्चुअल रिस्पांस से, ठीक है। इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Also the beauty is कि you can create multiple examples per response. Sorry, somebody is saying something. ठीक, आगे चलते हैं। तो मतलब जैसे कि अगर मैं को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल रिस्पांस, अपने जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट का यूआरएल है मेरे पास, राइट। तो इफ आई कैन बेसिकली गो एंड चेंज गेट एंड आई कैन एक्चुअली क्रिएट एन एग्जांपल फॉर गेट आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा गेट पे, आई कैन से लेट्स से सक्सेस एज फॉल्स, ठीक है। कि भाई अगर एक गेट वाली रिक्वेस्ट भेजोगे तो मुझे सक्सेस फॉल्स भेजना है, अगर पोस्ट भेजोगे तो मुझे सक्सेस ट्रू भेजना है, ठीक है। मैं लॉगिन वाली एपीआई पे जाता हूँ और अगर मैं गेट रिक्वेस्ट मारूंगा इधर, ठीक है, तो आई विल सी सक्सेस फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं इसी को पोस्ट कर दूंगा तो जो मैंने दूसरा एग्जांपल बनाया था सक्सेस ट्रू वाला, वो से वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आई कैन हैव मल्टीपल एग्जांपल्स पर एंड पॉइंट एंड ईच ऑफ दीज कैन चेंज। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिर्फ रिक्वेस्ट की टाइप चेंज करी है, इसी तरीके से रिक्वेस्ट के वेरिएबल्स के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये पैरामीटर आ रहा है तो ये भेजो, ये पैरामीटर नहीं आ रहा है तो ये भेजो, मतलब इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल पोस्टमैन रिक्वेस्ट। बस फर्क इतना है कि यू हैव टू डिफाइन द एग्जांपल्स इन सच अ वे कि फ्रंट एंड डेवलपर को प्रॉब्लम ना हो, वो सारे अपने सिनेरियो चेक कर सकता है कि अच्छा मैंने यूजर नेम पासवर्ड का फील्ड भेजा तो ये आना चाहिए, नहीं भेजा उनमें से एक फील्ड में स्किप कर गया, वैलिडेशन एरर आएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो इट्स अ फुल्ली फंक्शनल एंड टू एंड एपीआई which can be invoked from anywhere in the world, and you don't only have to invoke it from Postman, but it is beautifully going to decouple all the front end engineer work and the back end engineer work, ठीक है। अभी तक किसी का कोई फर्स्ट थॉट्स, कोई फीडबैक, any first impressions, anybody wants to say anything? सर इसमें वैलिडेशन एरर शो करना है, जैसे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट एंड ईमेल हम लोग ने सेंड नहीं की तो उसमें रिक्वेस्ट कैसे शेयर करें? एक मिनट याद हो रहा है सॉरी सर जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट इज फॉर लॉगिन, तो यूजर अगर लॉगिन में ईमेल नहीं भेज रहा है एंड वी वांट टू शो फॉर 22 आवर्स, तो रिस्पांस को लेफ्ट में राइट में एक कॉलम है उसमें शो कर देंगे, बट ये कैसे शो करेंगे, कब क्या दिखाना है, इस पे देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले दो तीन चीजें हैं। तो एक तो ये है कि जब हम रिस्पांस भेज रहे हैं तो हम रिस्पांस का सक्सेस स्टेटस कोड भी चेंज कर सकते हैं, पहली चीज तो ये है, ठीक है।
और ताकि हम लोग अपने अलग अलग रिस्पॉन्स को अलग अलग स्टेटस कोड भेज सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब हम ऐड एग्जाम्पल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐड यहाँ पे अगर मैं उसका एक एग्जाम्पल बनाऊँ लॉगिन का, ठीक है, और इस ऐड एग्जाम्पल में आई कैन एक्चुअली स्पेसिफाई कि ये एग्जाम्पल किन कंडीशंस में ट्रू है, कि मेरे को कौन कौन सी कीज मिलेंगी, क्या क्या मुझे पॉडियम पैरामीटर मिलेगा, तो मैं ये रिस्पॉन्स दूंगा। मतलब बेसिकली यू आर स्पेसिफिक, दिस इज लाइक एक्टिंग लाइक योर कंडीशन, कि मेरा रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट होगा, मेरे पैराम में ये आएंगे, मेरे बॉडी में ये आएगा, तो मैं ये भेजूंगा। आप समझ रहे हो? मतलब इस केस में जब ईमेल एंड पासवर्ड आएगा तभी ये 200 या जो भी हम लोग एग्जांपल सेव करेंगे सक्सेसफुल वाला तभी आएगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो उसके नहीं आएगा तो आपको दूसरा एग्जांपल बनाना पड़ेगा उसके, कि अगर एक ही आया दूसरा नहीं आया तो इट विल यू हैव टू शो एन, तो आपको दूसरा एग्जांपल चलेगा, उसमें आप 400 भेजोगे। सर बट इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अभी तो दो जैसे 5 फील्ड हो गए तो पांचों में हमें सारा पीएनसी लगा के हमें सारी फील्ड्स को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से एग्जांपल बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो ये बात तो देखो है ही, बट इट्स नॉट मेंट फॉर दैट। मतलब पांचों के अगर आप सारे के एक एक बिल्ड के कॉम्बिनेशन बनाने बैठ जाओगे तब तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगी। बट द आइडिया इज कि उनमें से अगर कोई मैंडेटरी फील्ड है उसको स्किप करके क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप मतलब फ्रंट एंड डेवलपर को दे सकते हो कि भाई ये तेरा सारे, ये तेरा रिस्पॉन्स है, ये तेरा मिसिंग फील्ड रिस्पॉन्स है, ये तेरा वैलिडेशन रिस्पॉन्स है, ये तेरा सर्वर एरर रिस्पॉन्स है। इस तरीके से आप अपने 4-5 क्राइटेरिया क्रिएट कर सकते हो। आई डोंट थिंक ये सारे कॉम्बिनेशन बनाने का कोई मतलब होता है, दैट विल बी टू क्लियरली। अगर हम लोग को उस केस में करते हैं इसमें तो बस ये रहेगा कि बस फ्रंट एंड डेवलपर को बताना है कि वैलिडेशन एरर इस टाइप का आएगा कैसे इंटीग्रेट करें, एंड वो तो बैक एंड में हैंडल कर लेंगे। सी एरर केसेस तो वैसे भी हमारे मतलब फिक्स ही रहता है, एरर के जो रिस्पांस रहता है हम लोग इसको एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हैं टू एटलीस्ट डीकपल दी हैप्पी फ्लो प्रोडक्ट। वरना होता ही है ना कि जैसे फ्रंट एंड ने खुद की साइड से कोड कर लिया खुद के अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, उनको 2 महीने बाद पता चलता है जब पूरा यूआई बन जाता है कि अच्छा एपीआई इंटीग्रेशन एपीआई तो ऐसे कुछ मिली है, ठीक है, व्हिच अगेन इंट्रोड्यूसेस न्यू एफर्ट ऑन देयर साइड एज वेल कि भैया मैंने तो कंपोनेंट का भी ऐसे स्ट्रक्चर किया ही नहीं, फ्रंट एंड ने बैक एंड ने अचानक से ऑब्जेक्ट नेस्टेड भेज दिया मुझे, तो उस उसमें दिस विल ग्रेटली हेल्प अस कि वो आप अपने साइड से ना व्हाइल डिजाइनिंग द यूआई व्हाइल कोडिंग द यूआई यू विल थिंक ऑफ इट एज अ लॉजिकल कंपोनेंट नॉट जस्ट अ विजुअल कंपोनेंट, ठीक है, वेयर द डेटा फ्लो विल हैपन एवरीथिंग। तो उसमें अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक फ्रंट एंड टीम अपने जो होते थे कई डेवलपर्स खुद ही जेसन ऑब्जेक्ट बना के रखते रहते एंड दे यूज्ड टू यूज दैट, बट उसमें भी उनको रेडक्स वगैरह इंटीग्रेट करने में बाद में दिक्कत आती थी, चैलेंज आता था एपीआई कॉल वगैरह जब लगानी रहती थी। तो आई थिंक मतलब दिस इज एक्चुअली ग्रेट, ठीक है, ये हमने वेजीज पे ट्राई करने की सोची थी, ठीक है, वो कभी हुआ नहीं, तो वो हुआ नहीं इसलिए मैंने कर दिया, बात ये है, ठीक है ना। हां नहीं हुआ, ठीक है। तो द थिंग इज कि इसमें एक चीज और है, मतलब अगेन आई वुड यू नो प्लेइंग अ लिटिल एडवोकेसी ऑन द फ्रंट एंड साइड। हम ये भी कर सकते हैं कि एंड अगेन यू नो वैभव यू कैन डिसाइड वेदर इट इज अ गुड स्ट्रेटजी और नॉट, कि यू कैन डिफाइन द सिग्नेचर फॉर द बैकएंड गाय कि हमें ऐसा चाहिए, ठीक है, एंड यू कैन डिफाइन द मॉक, एंड इफ द बैकएंड गाय इज इन एग्रीमेंट देन वी कैन जस्ट रेंडर द जेसन इन दैट फॉर्म। हम लोग एक काम कर सकते हैं, The backend guy is not in agreement with right now. we'll never be agreement because we have our own principles we need to follow, Right. इसमें एक चीज कर सकते हैं, बट आई एग्री विद योर पॉइंट, इसमें ऐसा पार्शली कर सकते हैं, इट कैन बी शेयर्ड थिंग एज वेल कि हम लोग अपने साइड से ना एपीआई स्पेक्स बना के दे सकते हैं व्हाइल वी क्रिएट द एपीआई स्पेक्स वाली शीट ऑन द एसडीएल ऑन द प्रोजेक्ट प्लान, पोस्टमैन कलेक्शन बना के देता हूं, ठीक है, फ्रंट एंड टीम, मोबाइल टीम, फ्रंट एंड टीम जो भी है वो लोग बेसिकली अपने एंड से क्या कर सकते हैं, अपनी साइड से आप रिस्पांस फिल करना स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि आपकी एपीआई इंटीग्रेशन वाला पार्ट ना कभी चैलेंज हो, Right. आपके एरर केसेस हमेशा वो रहेंगे, ठीक है। So basically, it will create a common ground for both of the teams. Like they will know what they have to develop, Yes. and we will know what we will get. Yes, Once we change you this- will not only get it in future, you are getting it in current We are date. getting it. Yes, हाँ, yes, yes. correct. It is not something that like just a text. हाँ, correct. You're getting it by actual making And an API. I'm actually sure कि वो अब ना मतलब now that we know such standard things, so 80% of the time the API response is expected, but the mobile team will be correct. And in fact, it will help in reviewing the APIs also for us. Like we have to do the responses. Like if anything is missing or not, all we have to do is just review this Postman collection and everything, and it will be done. Instead of reviewing the whole working APIs, that can be reviewed by. इसमें वैभव कहीं ना कहीं आई एम काइंड ऑफ इंस्पायर्ड विद व्हाट यू टोल्ड मी लेट्स से अबाउट अ ईयर और टू अगो, व्हिच इज कि जैसे आपने जहां पे हमने वो पूरा प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग एक बार करी थी, यू टोल्ड मी कि वहां पे दो टीम्स के बीच में एक बार प्रोटोकॉल पे एग्रीमेंट होती है, फिर दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखें तो भी काम हो जाता है, Right, sir. so that is kind of decoupling that we can achieve if we follow this protocol, right? एक नोटपैड फाइल में या वर्ड फाइल में या किसी में वो कर्ली ब्रैकेट के साथ रिस्पांस देखना,
ठीक है. Human tendency होती है you end up missing tend to miss a lot of things. बट यहाँ पे आपको एक रिस्पांस मिलेगा चलती हुई API का, you will actually feel more confident कि अच्छा मेरा फाइनल रिस्पांस भी अगर ऐसा ही आएगा तो whether this particular response is sufficient for my use case or not. ठीक है. Right, sir. So the best part is ना, you are basically mocking a server. ठीक है, seeing the why is API call not happening. ठीक है, कोई attribute disable enable किया तो API call क्यों नहीं हुई. ठीक है, वो जो सारी चीजें होती है ना, like socket अगर मैं इससे mock कर सकता हूँ. Right. ठीक है, तो you can also mock socket मतलब I think. ठीक है, so वो सारी चीजें होती है, retry का logic हो गया. ठीक है, polling करनी है आपको, polling का logic implement करना है, you can't do it on the उस पे क्या बोलते हैं on a JSON object. आपको उसके लिए API server चाहिए. So this is something which I feel is correct because API integration is not just about integrate. मतलब integration वाला part itself is a tedious task. Absolutely. हम लोग मतलब इससे कर सकते हैं. मतलब I honestly मतलब अच्छा रहेगा ये हम लोग कर सकते हैं. This is very useful. This isn't It will help us in our SDLC like process also जिसे हमने define किया था कि we will not now work like UI first and then APIs. We will work like module by module. Yes. So the both teams can start at same point. This is also a good part. Right. Absolutely. यही वाली शीट जो शेयर करते हैं ना उसकी जगह आई थिंक वी कैन रिप्लेस. ठीक है जी. So this is part 1 of my demonstration today. The part 2 also is also something which is जो मैंने evaluate किया था कि थोड़ा सा problem ये कई की जगह बन जाता है, not all the time but sometimes, especially when we are working in a distributed environment. कि मतलब अगर हमारी टीम ही पूरा प्रोडक्ट बना रही है फ्रंट एंड बैक एंड कंबाइन तो हमें नॉर्मली इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. ठीक है. But if we are collaborating with an external party, then Postman also gives us a very beautiful way of documenting this. ठीक है, तो हम उसको एक बार बात कर लेते हैं. Again, it's very straightforward, कोई बहुत लंबा चौड़ा कुछ है नहीं इसमें, but it is still something which we can learn from. ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमने अभी collection import करी है, उसमें straight away you can see there is something called view documentation. It doesn't say create documentation, it says view documentation. ठीक है, तो हम view documentation क्लिक करेंगे, documentation बनी हुई पूरा का पूरा पेज तैयार है. ये हम लोग ने एक्चुअली हडल में जो हम लोग पार्टनर के वेबबुक्स बनाते हैं ना सर, ठीक है, तो 3 साल से हम लोग सेम कलेक्शन को शेयर करते आए हैं और उसमें डॉक्यूमेंट मतलब यू कैन आल्सो ऐड योर मार्कडाउन्स बाय द वे. ठीक है, यस, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट कि मतलब अपनी तरफ से अब जैसे ये लॉगिन एपीआई है. ठीक है, यहाँ पे इट एक्चुअली गिव्स यू एन ऑप्शन टू एडिट. दिस ओपन्स अ नॉर्मल मार्कडाउन एडिटर. वी कैन से कि दिस एपीआई इज यूज्ड ऑन द कुछ भी लॉगिन स्क्रीन. ठीक है, कुछ भी मतलब लिख सकते हो which obviously is helpful to whoever you are giving it to. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन स्क्रीन को यूज करके I can bold it and I can do whatever I want to. मतलब यहाँ पे images भी डाल सकता हूँ मैं, कोई सर्वर आर्किटेक्चर डायग्राम भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ. It's like just pure markdown here. ठीक है, ये करने के बाद once I am done with all of this, ठीक है, it gives me an option to publish. ठीक है, तो I just go here and publish it. पब्लिश करूंगा, मुझे कुछ वो बोलेगा कि भाई तुम बता दो कि क्या-क्या तुम्हें इसमें चाहिए. ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डाल दिया, कुछ डाल दिया यहाँ पे. आई क्लिक ऑन पब्लिश. ठीक है, नाउ मैं आपको पूरा पब्लिश करके दिखा रहा हूँ. दिस पर्टिकुलर यूआरएल यू विल सी हियर. ठीक है, इसी पे चलते हैं, इसी यूआरएल पे कॉपी कर देते हैं और इसी पे चलते हैं. आई डोंट नो इफ यू आर सीइंग इट, सो मैं डाल देता हूँ इसको. विंडोज शेयर्ड एक्चुअली एक सिंगल तो मैं इसको अब दिख रहा है ना. हां, तो बेसिकली इफ यू कैन सी दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन दैट्स बीन जनरेटेड फॉर यू ऑटोमेटिकली. ठीक है, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाली थी लॉगिन वाली स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आ गई. और सबसे खास बात ये है कि यू हैव सम सैंपल कोड आल्सो, लाइक यू नो दैट इज, मेरे को लगता है कभी-कभी बहुत यूजफुल लगता है. जैसे यू हैव एक्सेस का रियल कोड कि इस एपीआई को हिट करना है तो कैसे करना है. ठीक है, एंड लाइक रियली गुड स्टफ. मतलब आज की डेट में हम जैसे अपनी जॉब साइट में जो हम फ्रंट एंड इंजीनियर्स को टास्क भेजते हैं, टिल डेट वी आर जस्ट सेंडिंग द रॉ कलेक्शन गाइड. ठीक है, वेयर एज वी शुड बी सेंडिंग दिस डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, वेयर वी कैन स्पेसिफाई. देखो कई बार आता होगा, आई एम श्योर जितने लोग जो लोग इंटरव्यू पैनल पे हैं वो देखते होंगे कि बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार ये एपीआई में यूज करनी समझ नहीं आ रही है, ये एपीआई कहाँ यूज होती है, कहाँ करनी है. We can use all of that knowledge that we have learned over time with interacting with HR team and actually create a nice documentation for this particular collection itself. ठीक है, So we are actually creating this documentation for front-end panel because there were many doubts in front-end, so we have actually created it. But it's the text is missing, so I had added all the examples, all the possible examples. So if we add example, we can see it here in the documentation. yes. So I have added it, and only the English is required. So English text with the description of the APIs. As soon as we'll complete this, we'll start sending those, because right now what happens is many of the candidates don't know how to use Postman.
they asked a doubt. So as soon as I go on a call with them, they were seeing JSON, which we get on clicking the URL, and they are checking the URL back. So first I have to explain them how to use Postman, and then I have to clear their doubts. करेक्ट So if you share this, from there they you will, will this URL तो आपको से डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी. अब आपको पोस्टमैन यूज नहीं भी करने आता तब भी you can at least understand what the documentation is trying to do. exactly. ठीक है ना? So this is good. I mean, this will be helpful, and also, or especially for backend team, when you are publishing an API for a consumer who is outside of Square Boot. Example, Huddle. Right now, the kind of APIs that we are exposing for an app developer who is obviously not a part of our team, उनके लिए देखो कितने लाइफ आसान कर रहे हो if you are doing it in this way. So that you are giving them the exact API, you are giving them mock API, so you can create documentation of mocks also, just to be clear. ठीक है? मॉक की डॉक्यूमेंटेशन बना के आप उनको आगे भेज सकते हो. लेट देम यूज इट लाइक अ रियल एपीआई एंड वन फाइन डे यू विल जस्ट टेल देम कि भाई सब कुछ रेडी है, बेस यूआरएल बदल दे, राइट, एंड एवरीथिंग एल्स इज डन. ठीक है, एंड द ऐप इज रेडी फॉर प्रोडक्शन. दैट इज द काइंड ऑफ सीमलेसनेस दैट वी कैन ब्रिंग इनटू आवर एसडीएलसी इफ वी फॉलो मॉडर्न टूल्स लाइक पोस्टमैन. ठीक है, 2-3 चीजें हैं. It's a paid tool. Please don't worry. जो खर्चा होगा कंपनी बेयर करेगी. Just let me know if you need the paid version of it. ठीक है. Mock servers have a certain base limit of I think 1000 requests or something. अगर आपका वो 1000 request cross हो रहा है, please feel free to reach out to me and I will make sure that we find out an alternative on how to use this thing. ठीक है. सर पेड ले रहे हो तो यू कैन गो विद टीम वाला मेंबरशिप ना, उसमें फिर वो सिंक वाला भी अपना सब सही हो जाता है. हाँ एग्जैक्टली. तो वो टीम का इसमें कॉन्सेप्ट होता है. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड एवरीबॉडी टू अ टीम, और उस टीम के अंदर फिर सारे एपीआई जो हम बना रहे हैं वो हम ऐड करते चले जाएंगे. सो इट विल लाइक जैसे हमारा बिटबकेट हमारा सारा रिपोजिटरी का सिंगल सोर्स है, उस तरह जितनी भी एपीआईज हम पब्लिश कर रहे हैं हमारा सिंगल सोर्स बन जाएगा. ये हमारा टीम का, ठीक है ना. तो इट्स डेफिनेटली इट्स एन एक्सपेंसिव अकाउंट, नो डाउट, बट इफ वी नीड इट एंड इफ इट सेव्स even 10% of our development time, is totally worth it. ठीक है. इसमें जहाँ पे मल्टीपल लोग हैं ना उधर पे बहुत जरूरत पड़ती है इसकी. मैंने और अखिल ने काम करा था पीएफएस में, और शुरू में ही हमको प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब वॉशिंग का प्रॉब्लम. तो आई थिंक जरूरत पड़ती है. अगर जहाँ पे स्क्वायर बोट में तो ऐसे होता है कि मतलब मल्टीपल लोग होते नहीं है सिंगल प्रोजेक्ट पे, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है. बट जिस प्रोजेक्ट में आई थिंक ज्यादा लोग काम करते हैं उन पे तो होती है. हाँ, तो आजकल एक्चुअली क्या होता है कि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदला है. मतलब मोस्ट प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली 3-4-5 डेवलपर्स. हाँ वही सिंगल वाला थोड़ा सा मतलब ट्रेंड चेंज हो गया ओवर पास्ट 1 ईयर और सो. तो अब हमारे पास क्योंकि मोबाइल टीम अलग है, फ्रंट एंड टीम अलग, बैक एंड टीम, तो एटलीस्ट क्रॉस सिंक फंक्शनल टीम्स के अंदर जो सिंकअप है वो अभी बहुत ही वर्बल और 1-to-1 बेसिस पे होता है. आई वाज सीइंग मैसेजेस टुडे कि चैट पे आ रही थी, मेरे व्हाट्सएप चैट पे एपीएस पे आ रही थी जेसन की. ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये मतलब टिल टुडे मॉर्निंग वी वर गेटिंग दिस. ठीक है, करेक्ट. हाँ, तो आज तक सो वी कैन एलिमिनेट ऑल ऑफ दिस बाय गोइंग फॉर अ स्लाइटली मोर स्ट्रीमलाइन, स्लाइटली मोर वेल लाइक मॉडर्न ऑप्शन. ठीक है, तो मेरा सब सजेशन सब लोगों से ये रहेगा कि प्लीज फील फ्री टू यूज इट. मैंने आपको दिखाया है, इट टुक मी व्हाट 2 days टोटल टू गेट टू दिस पॉइंट. और तो 2 दिन भी मतलब ऐसा नहीं था सारा दिन यही कर रहा था, थोड़ा थोड़ा करते रहते इस पॉइंट पे मैं आ गया था कि आई कैन डू अ क्विक डेमो विद यू एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स. ठीक है, इसको सब लोग यूज करके देखो. इफ यू गेट इनटू एनी ट्रबल्स लेट मी नो, आई एम देयर टू हेल्प आउट. बट इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मेरे ख्याल से अगर आप आज इस टेक टॉक के बाद 15 मिनट लगा के भी अगर थोड़ा देख लोगे ना, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू कैन एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग इट. ठीक है, अंकुर, एनी थॉट्स ऑन दिस इफ यू आर ऑन द कॉल? अंकुर नहीं है, चलो ठीक है, अंकुर है. Sir, one thing. Like we have few new projects starting. So can we safely assume कि जो नया अब से जो हम नया काम कर रहे हैं वो पे डिलीवर होगा? हाँ, that's exactly what I was wanting to ask अंकुर. Can we make it as a part of our standard SDLC ताकि हम लोग इसको मतलब इसको bypass कर पाएं? So मतलब the only way to implement it to start it कर देते हैं. There is no problem, कोई दिक्कत नहीं है. आधे घंटे का सेटअप है. फॉल बैक आएगा तो देख लेंगे क्या, मतलब फॉल बैक है ही अपना, ऑब्वियसली नो द सॉल्यूशन. हाँ, we have to fall back absolutely. अगर कुछ मच जाए, कुछ फंस जाए बंदा, तो और हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे एलिगेंटली, तो we always can go back to our देसी way, right? वो हम कर ही सकते हैं किसी टाइम. बट ये वाला तरीके से हम अगर करने को एक बार को ट्राई करके we are able to successfully implement it, then that becomes the new way forward forever. Correct. ठीक है ना? अंकुर, इसको you're on mute, अंकुर. So I am completely agree with Vinayak's thought and Vaibhav thought कि जो भी हमारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट मेरा एक पॉइंट है इसके अंदर कि
अगर हमें प्रोजेक्ट प्लान में इसको इम्प्लीमेंट करना है, then how we are going to implement it in our project plan? Like हाँ, तो अंकुर that is something वो SDLC वाली जो है ना, अगर उसमें कुछ छोटा सा चेंज आएगा ना, वो इंटरनली एक बार कल मैं आप वैभव एक बार बैठ करके और PM टीम exactly कि जिससे क्या होगा, क्योंकि I don't see a huge deviation, क्योंकि उसी चीज को जो हम लोग हैंडओवर प्रोसेस हमने बीच में डाला था ना, उसी चीज से बचने के लिए अब हमने ये इम्प्लीमेंट कर देंगे. right. ठीक, so we can decide tomorrow. मतलब सर कब जब भी आप फ्री हो tomorrow. नहीं, absolutely. तो मैं तो फ्री हूँ इन सब चीजों के लिए. मैं 100% फ्री always. ठीक है. तो are you sure आप फ्री हो, because this is not the usual response that we get. For this I'm 100% free. anything around process improvement in Square What, I'm 100% free. Or is it peer pressure of 70 people on the call? नहीं, that's not the case. So the thing is कि we should implement it. और हमको ऐसा भी नहीं है कि पूरी planning A to Z पूरे project के advance में करनी है. You can plan for let's say n+10 कि अगर आप first API पे बैठे हो तो 10 की signature board example define कर लो. At least एक sprint की, at least एक basically we can go module by module. हाँ, module right. तो वो हम वो कर सकते हैं, right? ठीक है ना? ठीक है जी. So I think it's been a good useful discussion with everybody. Hoping to see some good positive change in this discussion. और किसी के कोई additional, जैसे मैं तो ये बता रहा हूँ, this is a very quick learning thing. If events you start using it, you will obviously go into much more detail, right? तो जो detail होंगी, please feel free to share it with the team on Microsoft Teams or on WhatsApp. मतलब अपने findings को खुल के वो करना. एक छोटी सी चीज थी. I wanted to know, like Vinayak and you both can answer, कि ये जो feature हम use करेंगे, इसमें वो auto sync वाला feature भी available है, like if the backend developer update any documentation or paid plan का ये तो फायदा है. Paid plan में you get the auto syncing feature. In fact अगर पीछे से response से request में change कर रहा हूँ ना, I just need to save the response, वो तेरे साथ खुद ब खुद update हो जाएगा. हाँ, तो वो बेटर रहेगा कि हमें बार-बार वो fetch नहीं करना पड़ेगा या बार-बार पूछना नहीं पड़ेगा ये क्या लिंक है करके. हाँ, वो देख लीजिए whatever it is. ठीक है, वैसे मैं तो इसका जो वाला वर्जन था उसी को यूज कर रहा है. But if there is something else and requires syncing का कोई फीचर चाहिए होगा, तो आपस में डिस्कस कर लेना. Even if it requires a paid account, we'll go for it. ठीक है सर. ठीक है guys, चलो. Thanks a lot everybody. Thanks a lot. Okay.